सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से शुरू कर रहा हूँ एंड बी अटेंटिव नाउ. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फेडरल स्ट्रक्चर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एंड आई बिलीव कि ये कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक and the length of this topic, I believe that this topic will be covered in two parts. Before directly going to discuss what kind of federal structure is basically being initiated under 1973 constitution, we have to go into the background ke how the federal system got evolved in our country and what were the reasons why the government of Pakistan and the people of Pakistan they wanted to adopt a federal system of governance in our country. This is what we are going to discuss today. अच्छा, लेकिन इसमें as I told you that कि first of all we have to have a better idea of the very term of federalism and why federal system is basically being adopted in our country. You know कि the word federal is being derived from the term feudus, जिसका मतलब है formal agreement between two or more than two parties. And experts believe that if a society is heterogeneous, people of different culture, color, caste, creed, language and religion are living in any society, in any state, and in order to govern that state, federal form of system is more appropriate. The reason being that federal form of system comes with the three tiers of power sharing: central power sharing, provincial power sharing and local body power sharing. So federal form of system is a more appropriate system if the government is willing to fulfill the needs of the people from the top to the lowest ebb of the society, lowest bottom of society तक जाने के लिए. So that's why people believe that federal form of system is more appropriate in order to govern a heterogeneous state like Pakistan. अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें and you know कि federal form of government is a government in which supreme and few powers by the constitution are given to the central government to rule over the whole country and general but many powers by the constitution are given to the federating units to rule over the part of the country. According to this definition, what we are going to have two tiers of power: central government and provincial governments. So central government is going to make legislation, is usually supposed to make legislation to cater the national needs, state level needs, and provincial governments they are supposed to cater the needs of the people within their own territories according to the norms, cultures, desire, wishes, whims, cultures, color, caste, creed of the people. तो इस वजह से I used to give the example to my student that for instance if state is going to make a law that the pump and show of weapon is forbidden in the country. This law has to be qualified keeping in view the different norms, cultures and traditions of the people. State ने इसको बना दिया, लेकिन अब इसको qualify करने के लिए different provincial governments they are supposed to apply this law according to the whims and desires of the people. So एक law जो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये होता है ना, यूनिटी गवर्नमेंट में होता है वन लॉ इज बीइंग पास्ड एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल कंट्री. फेडरल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, कलर, कास्ट, क्रीड होते हैं, दे गॉट देयर डिफरेंट नीड्स एंड टू फुलफिल दोज नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज आर रिक्वायर्ड. तो इसलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ में आपको पंप एंड शो ऑफ द वेपन मैंने मना किया है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को अकॉर्डिंग टू दी नीड्स उसको क्वालिफाई करके दे अप्लाई. तो इस वजह से होता है. अब मैं आपको बताता हूँ कि जब वैन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग उस वक़्त वो इनहेरिटेड इंडियन एक्ट ऑफ 1935. इंडियन एक्ट ऑफ 1935 बनाया कि क्वेश्चन ये आता है कि वाई पाकिस्तान अडॉप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसका तो एक मैं आपको बताता हूँ द realistic understanding of the structure of society was heterogeneous and to fulfill the needs of those things laws were required. दूसरी बात ये है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी है. आपको पता है कि subcontinent was being ruled by the Britishers and the people of subcontinent they were gradually getting politically conscious and
under different legal and constitutional reforms in subcontinent under 1909 reforms, 1919 reforms and Indian Act of 1935 reform. And under Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's 14-point and Nehru report, the people of subcontinent, they were continuously demanding the federal form of government in the subcontinent. So on the wishes of the people, a federal form of government was introduced in the country. उसको introduce कर दिया गया था, लेकिन since the Britishers, they were sitting in London and they were trying to regulate the affairs of subcontinent while sitting from London, so they wanted to have more and more power in their hand. So whatever the federal system was introduced, still it was of a centralized nature. And when Pakistan came into being, Indian Act of 1935, which was having a centralized nature of federal system, was with a few modification taken as an interim constitution of Pakistan. उसको लिया गया. And same kind of centralized nature also being reflected in interim constitution of 1947. Anyway, somehow at that time constitution was not being made, and in order to regulate the country, we wanted to have some legal directions. तो वो Indian Act of 1935 को with few modification we converted it into an interim constitution. ये तो एक मैंने आपको background में बताया. अच्छा खैर फिर क्या हुआ? And you are having a better idea कि we got our first 1973 constitution, we got our first unanimously approved constitution in 1956. उसके अंदर and we took almost 9 years to make our first federal constitution, उसको बनाया गया. तो उसके अंदर आपको पता है ये जो 9 years which were being taken to make the constitution, इसके अंदर center and centrist forces and decentralization की जो forces थी, they were fighting with each other in order to have more and more access to power and resources. So first basic principles committee report came, second basic principles committee report came, third basic principles committee report came. तो उसके अंदर क्या था, ये क्यों इतना प्रोसेस लगा था? उसके अंदर ये था कि फेडरेटिंग यूनिट्स दे वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर, दे वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, वेयर एज ऑन द अदर हैंड सेंट्रल जो पावर्स थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो पावर शेयर नहीं करना चाहती थी. दे वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर इन देयर हैंड्स. तो खैर समहाउ इन वन वे और द अदर नाज़मुद्दीन रिपोर्ट, जिसको बेसिक सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, एंड देन द मोहम्मद अली बोगरा थर्ड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट के अंदर somehow a federal system was adopted in our country, and unlike 1947 interim constitution, more powers they were being shared. लेकिन the critics they still believe कि 1956 constitution, despite the fact that apparently it was having a federal structure and it was having some sort of consensus as well, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाज स्टिल डोमिनेटिंग ओवर द प्रोविंशियल अफेयर्स हो रही थी. एंड उसके बाद आपको पता है फ्रॉम 1947 टू 1971 1973 जो साल हैं 1971 टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान में वी गॉट आवर 3 कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, 56 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 62 कॉन्स्टिट्यूशन. 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगेन व्हाट हैपेंड, despite the fact that Pakistan was a heterogeneous society, Pakistan एक heterogeneous society थी, लेकिन in 1962 constitution country was regulated into a unity form. Country was converted into unity state, and a unity form of government was adopted in our country. अब इसके अंदर क्या हुआ? Then ultimately this resulted in the disintegration of Pakistan in 1971. तो क्या हुआ कि जो एवोल्यूशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, उसके 2 फेज़ हैं जिसको क्रिटिक्स कहते हैं. एक प्री फेडरलाइजेशन फेज़ है और एक फेडरलाइजेशन फेज़ है. प्री फेडरलाइजेशन फेज़ के अंदर क्या है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम इन फर्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज टेकन एज अ फेडरल state, but it was never practiced as a federal state. The principles of federalism were never practiced in our country. 62 के अंदर the very structure of country was converted into a unity state, और ये हुआ था. तो प्री फेडरेशन के अंदर हमने क्या देखा कि forces of centralization they were very powerful, बहुत powerful थे. Somehow in one way or the other, if in 2 constitution, first 2 constitution we try to convert Pakistan into a
फेडरल स्टेट, लेकिन पाकिस्तान वाज नेवर प्रैक्टिस्ड, नेवर रेगुलेटेड एज अ फेडरल स्टेट। और 62 के अंदर तो आपको पता है यूनिटी स्टेट थी और कोई फेडरलिस्ट नहीं थी, कोई प्रोविंशनलिस्ट नहीं थी, कोई कंकरेंटलिस्ट थी, एक ही लिस्ट थी, फेडरलिस्ट थी, जिसको लोग मार्शलिस्ट कहते हैं। और उस वजह से पाकिस्तान को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। सेंट्रलाइजेशन की पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो थी, पावर थी, दे वर गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स, दे वर कंटिन्यूसली डिमांडिंग, एंड दिस इज़ हाउ ईस्ट पाकिस्तान गॉट लिबरेटेड, वो हमसे अलहदा हो गया एंड कंट्री वाज डिसइंटीग्रेटेड। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर मैंने जो आपको प्री फेडरलाइजेशन का जो प्रोसेस बताया, इसको पाकिस्तान कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली अ सेंट्रलाइज्ड मेजोरिटेरियन फेडरेशन है। पाकिस्तान इज़ अ सेंट्रलाइज्ड मेजोरिटेरियन फेडरेशन है, और जिसकी जो फेडरेशन की एलिमेंट हैं रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू दी एथनिक रीजन्स और फेडरेटिंग यूनिट्स भी हैं, लेकिन इट इज़ अ सेंट्रलाइज। अब मैं मिसाल देके बता रहा हूँ। जो मैं असल बात जो एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फेडरलिज्म की जो फोर्सेस हैं, ये जो प्रोसेस ऑफ फेडरलिज्म है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटाइजेशन, it is not based on democratization. The process of federalization is not based on democratization. Democracy is something else, and जो फेडरलिज्म है it is something else. वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से कि मैंने आपको जब अमेरिकन सिस्टम पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो दुनिया में फेडरल सिस्टम डिफरेंट अंदाज में किए जा रहे हैं। एक कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन है, एक अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरेशन है, और एक पाकिस्तानी मॉडल ऑफ फेडरेशन है। जो अमेरिकन मॉडल है उसके अंदर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर एनैमोरेटेड, यानी उनको लिमिट किया गया है, एंड मैक्सिमम पावर्स दे आर गिवन टू द फेडरेटिंग यूनिट। तो इस वजह से अमेरिका का जो सिस्टम है उसके अंदर फेडरेटिंग यूनिट्स दे आर हैविंग मोर पावर्स। अब जो कैनेडियन मॉडल अगर देखें उसके अंदर पावर ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स दे आर एनैमोरेटेड, उनको एनैमोरेट किया गया है, and rest of the powers they are given to the federation central government। और उसके अंदर अमेरिकन सिस्टम के अंदर प्रोविंसेस दे आर फेडरेटिंग यूनिट्स, जो स्टेट्स हैं दे आर मोर पावरफुल, और कैनेडियन मॉडल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर ये जो सेंट्रलाइज्ड मेजोरिटेरियन फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर एनैमोरेटेड, पावर्स ऑफ द provincial governments they are enumerated, and then some of the powers they are put in the third list that is known as the concurrent list। concurrent list भी बनाई गई है, और इसके अलावा there are some residuary powers which are given to the provincial governments, वो provincial governments को दिए गए। तो एक ये मॉडल है पाकिस्तान का जो मॉडल है। इसके अंदर आप लोगों को पता है फेडरल लिस्ट भी है, यानी कि फेडरलिस्ट रेफर्स टू दी पावर्स in which just the central government or the federal government is having the power to make legislation, and provincial governments are based on the list of subjects in which just the provincial governments they are supposed to make legislation, and central government cannot make intervene over those legislation। और इसके अलावा concurrent list है जो आप लोगों को पता है कि list of subjects in which both central and provincial governments they can make legislation, but in case of conflict between the legislation being done by the central government and the provincial governments, then the legislation done by the central government would be having superiority, और उसको फाइनल कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया पाकिस्तान में। अब 1971 पाकिस्तान वॉज डिसइंटीग्रेटेड। जब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ तो somehow the framers of 1973 constitution they wanted to give more powers to the federating units। they learned from the natural ये जो national disaster of 1971 debacle of East Pakistan से learn किया, and they wanted to frame 1973 in which the constitution according to which they wanted to give more power to the federating units को power देने। लेकिन ये बनाया तो गया, इसको माना तो गया, लेकिन अगेन क्या माना गया, क्या देखा गया, वो ये देखा गया कि ये जो
फेडरेशन है जो बनाई गई है, ये इट इज़ नॉट डिवॉल्विंग, इट इज़ नॉट व्हाट यू कॉल के ये जो पावर डिवॉल्व नहीं कर रही, बल्कि ये क्या कर रही है, इट इज़ बेसिकली गिविंग मोर जो ये पावर, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट सर, दे वांटेड टू गिव मोर पावर टू द फेडरेटिंग यूनिट्स। अब इसके अंदर ये जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि समहाउ आफ्टर द डिबेकल ऑफ 1971 ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, the framers of 1973 constitution they wanted to give more power to the federating units, लेकिन the critics they come up with the idea कि power is not as such being devolved through the bottom up approach, कि power must be the bottom up, the true essence of the system of federation is based on what you call it the bottom up approach, means power must be devolved to the lower section of the society, and when the lower section of the society they would be politically autonomous, this is how a strong federation would be would come into being. लेकिन पाकिस्तान में जो पावर डिवॉल्विंग है वो बॉटम अप्रोच के तहत नहीं हुई, बल्कि टॉप डाउन अप्रोच फैशन के तहत अथॉरिटी जिसके तरह, और इसी वजह से स्टिल देयर इज़ अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स, और ये चल रही है, और इस वजह से different kind of slogans we are still witnessing in the whole country, despite the fact that Pakistan is a federal state and 1973 constitution provides more and more political autonomy to the federating units of Pakistan, लेकिन still the slogans like such as जाग पंजाबी जाग, सिंधु देश और महाजरिस्तान, जिनापुर, सराकिस्तान और बलारविस्तान और लर और बर की जो डिबेट्स हैं, दे आर स्टिल गोइंग ऑन, ग्रेटर बलोचिस्तान के जो नारे लग रहे हैं, पीपल दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द पावर डेवोल्यूशन प्रोसेस, एंड दे बिलीव के स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग मोर एंड मोर पावर। अब मैंने जो बैकग्राउंड सारा बनाया है, उसका एक मकसद था कि आप लोगों को बताऊं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दे वर बीइंग अडॉप्टेड सिंस द इंसेप्शन ऑफ 1947, 47 का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइज, 56 का सेंट्रलाइज, 62 का फेडरेशन वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री वाज बीइंग रेगुलेटेड लाइक अ यूनिटी स्टेट, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन somehow made some compromises, gave more and more power to the federating units, but still federating units they believe ke according to the true system of federation power and resources they are not being shared. आज हम देखते हैं what kind of powers they are being shared under 1973 constitution with the federating units of Pakistan. याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो फेडरल सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 tiers ऑफ पावर डेवोल्यूशन। एक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखती है, एक प्रोविंशनल गवर्नमेंट रखती है और एक लोकल गवर्नमेंट रखती है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो पावर डेवोल्यूशन है वो लोकल बॉडी सिस्टम पे तो कभी गई नहीं, एंड इट रिमेन्स एज अ शटलकॉक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशनल गवर्नमेंट, एंड स्टिल इन दिस द कॉन्फ्लिक्ट एंड टसल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज प्रिवेल्ड ओवर दी फेडरेटिंग यूनिट्स, उसके ऊपर उसने हमेशा प्रिवेल किया। अच्छा खैर, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करना शुरू करते हैं, वो ये है कि जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इट वाज बेसिकली अ कंप्रोमाइज between or it was basically the reflection of the 21-point program of United Front and East Pakistan. और ईस्ट पाकिस्तान का जो यूनाइटेड फ्रंट था वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूनाइटेड फ्रंट था, जिससे बाद में टूट के अवामी लीग भी बनी। तो उसका 21 पॉइंट्स एजेंडा था, और they were of the opinion that Lahore resolution suggests that Pakistan would be a federal system, पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए, और फेडरल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन बनाने चाहिए। और फिर ये और 56 के अंदर समहाउ द पॉइंट्स ऑफ यूनाइटेड फ्रंट्स दे वर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। और जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी एक कंप्रोमाइज़ था बिटवीन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी थी, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी पार्टी थी जिनमें ANP थी, अवामी नेशनल पार्टी, और JUI जमात उलमा इस्लाम, मुफ्ती जो महमूद का जो था,
और इनकी डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी NWFP और बलूचिस्तान के अंदर। तो खैर ये मैंने आपको बताना। अब इसका मतलब ये है कि जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर मोर एंड मोर डिमांड्स and the wishes of the provincial governments, they were being incorporated. So much so कि when provincial list was being made and the central list was being made in with reference to the legislative federation in 1973 constitution, and a concurrent list was also being made. And when this constitution was passed and it was being imposed in the whole country, इसको promulgate किया गया था. At that time Zulfikar Ali Bhutto made the promises with the different nationalist leaders that within the span of 5 to 10 years ये जो concurrent list है it would be abolished and every subject of the concurrent list would be given to the federating units. फेडरेटिंग यूनिट्स को दे दिए गए और लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट डिवॉल्व नहीं हो सकी और फाइनली 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट में ये जाके इसको अबॉलिश किया गया। अब मैं आपको जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो है क्या, जो फेडरल सिस्टम का 1953 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस्म की हमारे साथ ये प्रॉमिस करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस किस्म का होना चाहिए। अब इन चीज़ों के ऊपर मैंने आप लोगों का डिस्कस करना है कि किस किस्म का स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली बीइंग प्रॉमिस्ड बाय 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसा कि आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है पाकिस्तान वुड बी ए फेडरल रिपब्लिक, इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक होगा, फेडरल रिपब्लिक होगा, ये आर्टिकल 1 में। फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट लेजिस्लेचर वुड बी बाईकैमरल, जिसका प्रिंसिपल क्या होगा, legislature would be dominated, lower house of the legislature would be dominated by the populist forces and जो upper house of the legislature would be dominated by the forces of uniformity and union, उनसे dominate होगा। इस तरीके से क्या मतलब है कि पूरे smaller provinces and जो हैं larger province they got their due representation according to their demands। तो ये भी एक फेडरल नेचर है। और उसके बाद रोल ऑफ जो पॉपुलर फोर्सेस तो चलो समझ आती हैं, रोल ऑफ सेनेट को भी बड़ी हद तक इंक्रीज किया गया। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो 280 आर्टिकल्स हैं, दे आर ऑल अबाउट इन वन वे और दी अदर रिलेटेड टू दी फेडरल सिस्टम से रिलेटेड हैं, किसी भी तरीके से उसको पकड़ें। लेकिन देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोविजंस विद रेफरेंस टू दी वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री, और उस चीज़ को अब हमने देखना है कि वैसे तो पूरे का पूरा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल सिस्टम के ऊपर बेस करता है, लेकिन देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोविजंस। आपको पता है देयर आर 12 पार्ट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 4 एंड जो पार्ट 5 एंड पार्ट 6, दीज टू जो पार्ट्स हैं, दीज टू पार्ट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली डील्स with the federal system in our country, लेकिन with the different domains, जैसा कि part 5 deals with the legislative and executive federalism in our country. Part 5 of 1973 constitution deals with the legislative federalism and executive federalism, and part 6 deal with the fiscal और economic federalism in our country. अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो part 5 है, part 5 is further divided into different chapters, इसके 2-3 चैप्टर्स भी हैं। अभी ज़रा देखते हैं कि लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म से क्या मुराद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्ट 5 है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर्स हैं वैसे, और इसके जो आर्टिकल्स हैं दैट आर रिलेटेड फ्रॉम 141 टू 159, ये जो जितने आर्टिकल्स हैं दे डायरेक्टली डील विद द लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑफ फेडरल स्टेट, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन वुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन वुड बी डन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किस तरीके से किए जाएंगे। तो जो लेजिस्लेटिव के अंदर है ये इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स, ये मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखिए अभी तक मैं आपको वो बता रहा हूँ जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थिंग्स आर रिटन एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन फेडरलिज्म दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड अंडर 18th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम द लास्ट पार्ट ऑफ दिस
लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनाया गया था एंड हाउ द थिंग्स वर बीइंग अमेंडेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब जैसा कि बताया मैंने आपको 47 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी था और 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। 47 और 56 में 3 लिस्ट थी, फेडरलिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट थी। अब इसके अंदर जो बेसिकली बनाई गई हैं वो 2 किस्म की लिस्ट बनाई गई। 1973 में 2 किस्म की लिस्ट बनाई गई। एक वो थी जिसको फेडरलिस्ट कहा गया, दूसरी वो थी जिसको कंकरेंट लिस्ट किया गया, और तीसरी लिस्ट को बनाने का जो नाम बताया गया इसको रेजिड्यूरी पावर्स कहा गया। एंड दीज रेजिड्यूरी पावर्स दे वर गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। गौर से सुनिएगा, आर्टिकल 142 जो है इट डायरेक्टली डील्स विद द लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। एंड फेडरल लेजिस्लेटिव जो लिस्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2। एंड और जो दूसरी लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है। और प्रोविंसेस को दिया गया रेजिड्यूरी पावर्स। कौन सी पावर्स? रेजिड्यूरी पावर्स मीन्स the powers which are the subjects which are not discussed in the Federalist 1, Federalist 2 or the concurrent list, they and everything rest of everything is given to the provincial governments। provincial governments को दी गई हैं सारी की सारी। अब ज़रा बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे रुक के आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे बताएं कि आपको समझ आई कि नहीं आई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्टिकल 142 जो हैं इट डायरेक्टली डील्स विद दी legislative power of the federal government and the provincial governments। और आर्टिकल 142 जो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव लिस्ट इनटू 2 लिस्ट, एक है फेडरल लिस्ट और दूसरी है कंकरेंट लिस्ट। और तीसरी जो पावर्स हैं दे आर रेजिड्यूरी पावर्स, दे आर गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। प्रोविंशियल चैप्टर में फेडरल लिस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फेडरलिस्ट 1 एंड फेडरलिस्ट 2। And you know concurrent list is the list of subject in which both central and provincial governments can make legislation। दोनों बना सकते हैं, लेकिन in case of conflict of legislation the legislation of the central government would be prevailing। तो इसके अंदर भी है। And legislative list के अंदर there were 47 subjects। legislative list concurrent list के अंदर there were total 47 subjects जिसके ऊपर both central government and provincial governments they were supposed to make legislation। अब ज़रा फेडरलिस्ट 1 एंड फेडरलिस्ट 2 को देखते हैं। फेडरलिस्ट 1 जो थी, जो फेडरलिस्ट 1 जो है ये कौन सी लिस्ट थी? इट वाज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच जस्ट फेडरल गवर्नमेंट वाज हैविंग द अथॉरिटी टू मेक लेजिस्लेशन। और इसमें देयर वर टोटल 59 एटम्स। इसके टोटल 59 एटम सब्जेक्ट्स रखे गए थे। और पार्ट 2 के अंदर जो फेडरलिस्ट 2 थी उसके अंदर टोटल 8 थे, 8 आइटम्स। तो दोनों को अगर मिलाएं फेडरलिस्ट 1 और फेडरलिस्ट 2 को तो 67 बनते हैं। 67 सब्जेक्ट्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 47 थे। और आपको पता है कंकरेंट लिस्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करती थी और वैसे भी 67 फेडरल लिस्ट के अंदर ले लिए गए। लेकिन अब मैं जो इसके अंदर बताता हूँ, जो पार्ट 1 है इसके अंदर जस्ट इट वाज द सोल पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू मेक लेजिस्लेशन। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अब 67 तो सारे, जो 59 तो सारे तो नहीं काउंट किए जा सकते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जैसा डिफेंस है, एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी है, नेशनैलिटी है, माइग्रेशन है, करेंसी है, इसके बाद कर्जे हैं जो फेडरेशन जो लेती है, फेडरल सर्विसेज है, वगैरह 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 वगैरह। और उसके बाद जो फेडरलिस्ट 2 है, अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फेडरलिस्ट 2 है उसके अंदर टोटल 8 एरियाज हैं, 8 एरियाज। एंड फेडरलिस्ट 2 है इट इज़ गिवन अंडर द गाइडेंस ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और आप लोगों को पता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ फेडरल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं। और वो जो नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूटिंग एरियाज हैं, उनको कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर रखा जाता है। और उसके ऊपर ये क्वार्टरली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करते हैं। एंड जो फेडरलिस्ट 2 है इट इज़ कंपोज ऑफ 8 आइटम्स, जिसमें रेलवे है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये दीज 8 एरियाज दे आर गिवन टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को दिया गया। और कंकरेंट लिस्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे उसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स थे। एंड दीज 47 सब्जेक्ट्स वो कौन कौन से? बहुत सारे हैं। क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, आर्बिट्रेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो एरियाज़ हैं ये सारे के सारे
कंकरेंट लिस्ट में डाल लिए गए। अब आते हैं जो चैप्टर 2 है पार्ट 5 का, दैट इज़ रिलेटेड टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म। ये मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब इसके अंदर देयर आर टोटल 5 आर्टिकल 145, 146, 147, 148, 149 5 हैं। ये डिस्कस करते हैं कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप कैसे होंगे। जैसा कि इसके अंदर प्रेसिडेंट की एक आर्टिकल डायरेक्टली डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट द गवर्नर्स टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल सेटअप, उसमें करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग सम अथॉरिटी to instruct the central provincial governments to do this and to not to do this वगैरह वगैरह, और ये पावर उसके रिलेटेड है। आर्टिकल जो बड़ा ये जो इससे रिलेटेड है इसके अंदर। और उसके बाद जो अगला जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त क्लास आता है जिसको कॉमर्स क्लास कहते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान। ये आर्टिकल इट इज़ रिलेटेड टू द आर्टिकल 151, और ये जो आर्टिकल 151 है ये इंटर प्रोविंशियल ट्रेड के को डायरेक्टली डील करता है इन सारी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेलम्स के अंदर आता है। उसके बाद जो चैप्टर 3 है दैट इज़ रिलेटेड टू दी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसके अंदर टोटल 7-8 आर्टिकल्स हैं स्टार्टिंग फ्राम 152 टू 159। ये आर्टिकल्स चैप्टर 3 के हैं दैट इज ऑफ पार्ट 5। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? It is basically related to the areas of common interest, and these things they are put under the council of common interest। जैसा कि वाटर सप्लाई है, रिवर्स वाटर कैसे शेयर होना है बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस, इलेक्ट्रिसिटी है, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ब्रॉडकास्ट हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और ये इसकी कंपोजिशन है वगैरह। इसके अंदर आपको बताया, मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर इसका मेंबर है और 4 चीफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, और इसके अलावा इसके और जो प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको इसके अंदर डाल सकता है, यानी कि कुछ फेडरल जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इसके अंदर डाला जा सकता है। तो बच्चों ये जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस किया है दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल इट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आर्टिकल 154 से लेकर 154 कंपोजिशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो टोटल हैं 152 से 159 डील्स विद द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और सम एरियाज विच कुड बी पुट अंडर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये सारे चीज़ें इसके अंदर डील करती हैं। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि जो फेडरलिस्ट 2 है वो सारी की सारी जो सारी की सारी फेडरलिस्ट 2 है वो प्लेस की गई है अंडर द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और उसके 8 एरियाज़ हैं जो इसको डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई जाएगी अंडर आर्टिकल 156। प्रेसिडेंट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाएगा, और इसका प्राइम मिनिस्टर और इसकी फेडरल गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके अंदर होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट इसके अंदर कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जैसा कि रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को भी शामिल किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आर्टिकल 156 से रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये आप लोगों ने इस चीज़ को हर सूरत हर कीमत पर समझना है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू दी पार्ट 6 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ रिलेटेड टू दी फिस्कल फेडरेशन है। दैट इज यानी कि ये इतना अहम है, इसके अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कौम के अंदर जो मुल्क और स्टेट के वो प्रोविंशियल के गवर्नमेंट से अगर निकलते हैं तो प्रोविंसेस का कितना शेयर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर होगा, उसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे, कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हासिल कलेक्ट करेगी, कौन से जो टैक्सेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करेंगे। तो ये आर्टिकल वाइज ये जो पार्ट 6 है वो डील करता है
कि कौन से फिजिकल पावर्स दे आर गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कौन से फिजिकल पावर्स दे आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, NFC जिसको कहते हैं नेचुरल एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, मेकिंग ऑफ द डैम्स हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेशन है, टेकिंग लोन्स हैं, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, डील की गई हैं पार्ट 6 के अंदर, और डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और उसके डिफरेंट सब क्लॉजेस हैं जो डायरेक्टली डील करते हैं। मैं जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ, एक आर्टिकल 6 है, ये आर्टिकल 6 ये वो है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट करता है टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसके नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। और वो फ्रॉम द टोटल डिविजिबल पूल ऑफ इनकम उसको इसको शामिल करता है कि किस तरीके से नेशनल जो इनकम है उसको डिवाइड किया जाए बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। याद रखिएगा ये इंतहाई अहम ये जो फिस्कल फेडरेशन के जो प्रोविजंस हैं, और इस वजह से आज 18th अमेंडमेंट को रिवैम्प करने के बारे में, रिकंसिडर करने के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं आज का जो लेक्चर है वो इसी तक ख़त्म करता हूँ। इसी से अगला हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, और तब तक इंशाल्लाह आई थैंक यू मच। अगर कोई बात अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो।